everyone can see my screen? Hello, can you guys see my Yes. screen? All right. Yes, yes. All right. Most of them Yeah. are mute, so you're not able to hear them. All right, no problem. So, ma'am, so from here we can start. Yeah. Okay. So, I hope, I mean, most of you, were in the last session also. So, Krishna, ma'am, she's a speech and language therapist, and she's having more than 10 years experience in providing these therapies to the kids having difficulties in speech and language. So, today she is going to help us with those questions which we had in last session. And initially we will discuss about there are three questions around these things, and then we will open this session for everyone. And in meanwhile, if you guys have any question, then you can put it over chat. We will address it from there. Okay. So do we Yeah, start? ma'am. Yeah. Please go ahead. Okay. Hi everyone. Thank you for joining us. So today what we've done exactly, you guys have sent a lot of questions. There were like, I guess, good 60 or almost good 60 questions together. I got into different sections. So I have shorted the question in particular section because बहुत सारे questions जो होते हैं वो एक ही repeated questions होते हैं. So I have shorted them in terms of category. So today we are going to do 3 questions. I'll put up the question. We'll start explaining how to sort those problems, how to develop the particular skill. I'll show you the activity, what all can be done at home. Once I'm done with the particular question and the therapy module and the activities, I'll let it open for you guys. If you have any question, you can unmute, put up the question regarding that section only, and then we can go to the next particular question. Yes. So the first question I'm going to start, like the section. Okay, so someone is not mute. Please mute it. Yeah, I request other folks to be on mute, please. Please do mute it. Okay, let me put it on mute. Is there anyone else? Yeah, there are a couple of more parents. Yeah, I guess everyone is on mute. So, yeah, please go ahead. Okay. So I'll start with the first question. Like, if a child is already 3 and if he is a non-verbal. So basically the specific question regarding this topic was that my child is 3 years old and non-verbal, or when I say 3 years, it exactly means 2.6 to 3.6 years. Yes. So if your child is non-verbal, as in like he does not express the needs or demands, or he does not he's not verbal, he does not use for the demands and need. Yeah. So it is called non-verbal situation. So first thing I would like to tell you that when child is non-verbal does not mean child does not understand the question, or does not understand the language, or does not understand the word. Yeah. So start with the comprehension part. Like in previous session, I have explained that the language has got 2 parts. One is expression, another is comprehension. So the first come comprehension. Comprehension in layman term it is called understanding. Yes. So start with the comprehension. And now I will tell you how to develop the comprehension. First thing, most basic and very useful thing is you have to keep parallel talking the child, and that does not have to be like really structured. So whichever language whichever is your mother tongue, you're supposed to use that language in a very simple sentences, and keep doing the parallel talk. What is parallel talk now is whatever child does, you keep explaining in the simple word or simple sentence. For example, if your child is you're cooking or you're doing some activity, or your child is sitting by your side doing some activity,
for a child is playing with the car, you can always parallel talk. Oh, you are riding a car, you are making monkey sit on a car, you are riding a red car, you are taking car to the door, you are taking car to the sofa, you are taking car to the table. So this is what you have to keep doing. This is what it means, parallel talk. Whatever child does, keep talking about it parallelly in a very simple and understandable, like the native language, whatever is language is used at your home, that is language of yours. Yeah. One first thing, so that child associates that particular word with the action, whatever the child is doing. One. Second goes for the identification. So in order to say, you need to know the particular word associated with the object or the person or the action or the place. For example, if you are a Hindi speaker and if you go to south part of India, or for example the northeast part of India, and you're not aware of the language, even though you know it's a glass of water and someone says it in not your native language or not in the language which you understand, if someone asks you, please give me the glass of water, you will not able to execute the activity. Why? It's not that you cannot do it, it's because you did not understand the meaning of it, like how and what to be done. So in order to be expressive and reciprocate with the instruction or the command, the child should able to understand the language and should know the word, which word to answer. For example, if I have a pen and someone asks me in any of the other language which I don't know, for example Gujarati or Punjabi, like I don't know Punjabi or Gujarati, or someone asks me what is this, even though I know the answer pen, but I cannot answer the particular question because I don't know that particular answer in particular language. So when your child is delayed, all the language for them are foreign language, then the question comes, ma'am, we to keep talking about it, what is a big deal, ball is a ball, we keep talking about it. Yeah, I know it's not a big deal because your child does not pay as much attention as you to understand and correlate the language with a particular thing. So he does not learn it by itself, so he is delayed. Yeah. So in order to develop the identification, start with what and who question. For example, if your child is playing with the car or let's say ball or any of the toys, for example, so usually very normal things are like what child do are the pretend play, like making the dog sit on the chair or making the dog. Excuse me, ma'am. Yeah. Looks like most of the parents want अगर आप हिंदी में explain कर दो ये चीज तो हिंदी में करो, ओके ठीक है. and also one question like यहाँ पे सब लोग हिंदी समझते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को प्रॉब्लम है हिंदी में? Please If unmute anyone... and answer. Please unmute everyone and answer which language do you want. Yeah, I mean right now we are going with English, but most of the parents said like they want... No problem. Either language is fine. I didn't know the major language. Yeah, I mean we have people, but there are mostly people know I mean understand Hindi and they are much comfortable in it. मैं हिंदी में कर देती हूँ, no problem. चलो ठीक है. Yeah, okay. तो जैसे हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और हम उनको कुछ भी कहते हैं तो कभी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते हैं. हमें लगता है कि यार ये कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा खेल रहा है, प्रीटेंड प्ले कर रहा है, वो डॉग को इस पे स्लीपिंग करा रहा है एक बेड पे, या डॉग को बेड चेयर पे बिठा रहा है और हमने पूछा बेटे तुम क्या कर रहे हो, बेटे तुम क्या कर रहे हो, तो वो आंसर नहीं करेगा. हाँ, अनम्यूट कॉल्स. Okay, I just did that. Yeah. तो खेल रहा है, तो हम जब बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा चेयर पे कौन बैठा है, डॉगी क्या कर रहा है, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे समझे, क्योंकि हमने जो लैंग्वेज सीखी है वो हमारी इनेट कैपेसिटी थी. बाय बर्थ वी हैव बीन, हम लैंग्वेज सीखते जा रहे हैं, तो हमारे लिए लगता है कौन सी बड़ी डील है. बट जो हमारे डीलेड बच्चे होते हैं उनमें प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, टेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो उतनी ज्यादा टेंशन नहीं देते हैं जितनी ज्यादा हम देते हैं. अगर उनको पता भी है तो भी वो आंसर नहीं कर पाते. तो आइडेंटिफिकेशन डेवलप करने के लिए हम हु एंड व्हाट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. यस, आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे हमने 3-4 चीजें रखी है यहाँ पे और हमने बोला कि चलो तुम मुझे चेयर दे दो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी एक बेड है, एक चेयर है, एक बाथटब है, 3-4 चीजें रखी और हमने बोला कि चेयर दे दो. तो इन 3-4 चीज में से कोई भी एक चीज हमने बोली और बच्चे ने उठा के दे दिया, तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन. मतलब बच्चा इसको पहचान रहा है. ठीक है.
तो आइडेंटिफिकेशन की लेवल अगर आपके बच्चे की पूरी हो और फिर भी वो आंसर नहीं करता है, नॉन वर्बल है, तब हम जाते हैं लेबलिंग पे। लेबलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने ये दिखाया, पूछा बेटे ये क्या है, तो बच्चे ने बोलना है ये चेयर है, या एटलीस्ट अगर सेंटेंस, क्योंकि डिले बच्चा है तो हम पूरा सेंटेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो चेयर कम से कम वो बोले। तो अगर आइडेंटिफिकेशन पूरी है तब हम लेबलिंग की तरफ जाएंगे। और अगर आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानता, चीजों को बच्चा नहीं पहचानता है, तो पहले हम उसकी पहचान करेंगे। तो पहचान कराने के लिए जो होता है, हम 2-3 चीजें इंस्ट्रक्शन जो करते हैं कि अगर हमने चेयर ली, फॉर एग्जांपल हमने 1 हफ्ते का टारगेट रखा कि हमें बच्चे को चेयर और बेड पहचानना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे इन बच्चों में एक और जो बहुत बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि इनकी फिक्सेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने बोला कि चलो डॉग को चेयर पर बिठाओ, रैबिट को चेयर पर बिठाओ, तो वो क्या करेंगे कि वो ना पहले विजुअली ही लर्न करते हैं। तो उनको क्या लगता है, जो भी बैठने की चीज है ना वो चेयर से एसोसिएटेड है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ये है, बट जनरल सिचुएशन में ये होता है कि हम चेयर पे बहुत सारी चीजें करते हैं। हम इंडियन सोसाइटी में एकदम चेयर पे सामान रखते हैं, हम चेयर पे खड़े होके कुछ निकालते हैं, हम चेयर को पुश करेंगे, पुल करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि जब आपने बच्चे से पूछा, अगर हम बैठने के अलावा कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आपने पूछ दिया कि बेटा ये क्या है, तो उनको परेशानी होती है। तो आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और मल्टीपल वर्ब्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने चेयर के लिए रखा है आइडेंटिफिकेशन का टारगेट, तो हम ये पहले तो बेसिक, सबसे जो बेसिक फंक्शन है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक मोस्ट बेसिक फंक्शन होता है, तो हम वो कराते हैं कि चलो चेयर पे बिठाएंगे। जब बच्चे को ये एसोसिएट हो गया कि बैठना चेयर से होता है, उसके बाद हम उनमें मल्टीपल वर्ब्स लगाते हैं। चेयर को पुश करो, चेयर को रख दो, चेयर को हटाओ, चेयर को लेके आओ, चेयर को क्लीन करो, चेयर पे ये रख दो। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ हम मल्टीपल वर्ब्स कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि हर इंस्ट्रक्शन पे जो होगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेयर यूज होगा। तो जब चेयर यूज होगा तो वही अच्छा ये एक्शन तो ये है, बट ये सामान सेम रहता है। तो हमारे ब्रेन में ना शॉर्टिंग और सेग्रीगेशन से लर्निंग होती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप चेयर बोलोगे तो ब्रेन में एक इमेज जो बनेगी वो चेयर की बन जाएगी, और ऐसे कर करके आप उनकी आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर बच्चे ने 10 to 15 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने लग गया, फॉर एग्जांपल बॉल करने लग गया, चेयर करने लग गया, बॉटल करने लग गया, पेंसिल करने लग गया, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो सबसे बेसिक, जो बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चा डेली यूज में यूज करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कराएं। यस, कोई है? हेलो मैम। हाँ जी, मेरा जी, हमारी जो बच्ची है माही, वो मैम 9 साल की है। लेकिन वो जी मैम, हम ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद ना हम 5 मिनट का टाइम देंगे आपको अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इस सेक्शन की चीजें मैं एक्सप्लेन करके ना फिर मैं ओपन करूंगी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है। तो ये हो गई सामान की आइडेंटिफिकेशन की बात कि बच्चा अब चेयर पहचानने लगा, जितने चेयर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए हो गई। नेक्स्ट कराएंगे इसकी लेबलिंग कि बेटा चेयर रख दो, तुमने क्या रखा, चेयर रखा, चेयर हटा दो, तुमने क्या हटाया, अगेन आंसर चेयर होगा, चेयर पर बैठो, तुम कहाँ बैठे, चेयर पर। तो लेबलिंग मतलब बच्चा बताने लगा है कि आप किसके बारे में बात करो, वर्बली वो आंसर दे रहा है। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की। दूसरा आता है वर्ब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चेयर पे सिर्फ बिठाओगे तो एसोसिएशन सिर्फ बैठने का होता है। तो वही इनको क्या लगता है, जब एक बार आपने फॉर एग्जांपल थ्रो सिखाया, तो थ्रो यूजुअली हम सिखाते हैं बॉल के थ्रू, राइट। तो जब आप बॉल के थ्रू थ्रो सिखाते हो तो बच्चे को वो एसोसिएशन आता है, जब बोलोगे थ्रो द बॉल, कैच द बॉल, वो करते हैं। बट उनको लगता है कि थ्रो सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड, बट थ्रो इज अ एक्शन, वो एक एक्ट है। थ्रो मतलब होता है किसी भी चीज को हाथ में लेके आगे की तरफ पुश करना, दैट एक्ट इज कॉल्ड थ्रो, फेंकना। ठीक है, तो जब हम फेंकना कराएंगे तो अगेन वर्ब सेम रहेगा, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहले अगेन वापस हम उसी पे जाएंगे कि सबसे पहले बेसिक, उसके जो मोस्ट बेसिक एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है उससे हम यूज करेंगे कि चलो थ्रो द बॉल, बॉल फेंको। फिर हमने पेंसिल ले लिया, पेंसिल फेंको, ब्लॉक फेंको, कोई सॉफ्ट टॉयज ले ली, कोई स्क्वीजी टॉय ले ली। मेक श्योर दैट ये फूटने फाटने वाली चीजें ना हो, ताकि आपको भी परेशानी और बच्चा भी सेफ रहे।
तो उसको आप फेंको, उसी को फेंकने के लिए मल्टीपल चीजें यूज करो, तो उसको ये समझे कि अच्छा दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो हम ये एक्ट कर रहे हैं कि हाथ में कुछ लिया उसको नीचे ड्रॉप कर दिया, हाथ में कुछ लिया नीचे, इसको हम फेंकना बोलते हैं। तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, सॉरी। फिर आते हैं लेबलिंग ऑफ वर्ब, कि जब बच्चे आइडेंटिफिकेशन करने लगे, एज एन लाइक जब भी आप बोलो कि बेटा बॉल थ्रो कर दो, बच्चे ने थ्रो कर दिया, हाथ में उसके कुछ दे दिया, कुछ रखा है, आपने बोला कि बेटा ये थ्रो कर दो, बच्चे ने थ्रो कर दिया, या उसके बाद आती है लेबलिंग। जब ये करने लग जाए तब आप पूछो बेटा तुमने बॉल को क्या किया, इनिशियली नहीं बताएगा बच्चा, फिर आप उसको बोलो तुमने थ्रो किया है, फिर आप दूसरी चीजें आपने दी, पेंसिल दिया, ब्लॉक दी, टॉय दिए, थ्रो करो, क्या किया, थ्रो कर दिया। एक बार जब ये दोनों चीजें लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर तरीके, मतलब टेबल टॉप में जब हम उसको इन कमांड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिठा के करा रहे हैं, करने लग जाए, तब आप उसको जनरलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा खेल रहा है, उसने कुछ थ्रो कर दिया, या आप पर्पसली बच्चे के साथ खेल रहे हो, कुछ थ्रो कर दिया, तो आपने उसको फेंक दिया, तो उसको जब आप पूछो कि अच्छा बेटा मम्मा ने बॉल को क्या किया, तो बच्चे को आना चाहिए कि हाँ मम्मा ने बॉल को फेंक दिया, तो उसकी हो गई आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग। और ये एक दो दिन में नहीं आएगी आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग, कुछ बच्चों में तो बहुत यूं आ जाती है, जो थोड़ी सी जिनकी इंटेंट टू टॉक ज्यादा होती है। जिन बच्चों की इंटेंट टू टॉक कम होती है, यूजुअली 30 days to 60 days, कुछ बच्चे 90 days और कुछ बच्चे 120 days 150 days भी ले लेते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड। सो जो भी मैं कह रही हूँ हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो कभी आप ये नहीं सोचे कि जो मैंने या किसी भी थेरेपिस्ट ने आपको बता दिया कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन है, ये बिल्कुल लकीर के फकीर की बात हो गई कि ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा ही आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप हर बच्चे के अनुसार टेक्निक, इन पर्सन टेक्निक अलग होती है, वैलिडिटी अलग होती है, उसकी रिलायंस अलग होती है, कॉम्पिटेंसी अलग होती है। ये बात ध्यान रखें कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी जो चीज है आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फ्रूटफुल तरीका है, आप बच्चे से जितनी चीजें आप घर में करते हैं, अगर बच्चा कोऑपरेटिव है, जिनके सेंसेस रेगुलेटेड हैं, जिनकी सेंसेस सारी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल तक पहुंच गई है, आप उनके साथ घर के सारे काम कराएं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बच्चे की एक तो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है, और दूसरा क्या होता है कि धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते करते एक कंटेक्चुअल लर्निंग आती है, क्योंकि घर में जो आप काम करते हो वो एक रिपीटेड रूटीन होता है कि घर में खाना बनेगा ही, क्लीनिंग होगी ही, पेरेंट्स ऑफिस जाएंगे ही, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो मेडिसिन लेंगे ही, टीवी देखेंगे ही। तो आप बच्चे को अपने साथ जो भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका है कि आपने सब्जी लाई, अब डेली बच्चे को बोलोगे बेटा ये तुम्हें फ्रिज में रखना है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक तो उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ रही है कि आप उसको कमांड दे रहे हो, वो दूसरी हो जाएगी कि उसको पहचान धीरे धीरे करते करते समहाउ उसको आइडिया लग जाएगा ये पर्टिकुलर कैटेगरी ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, किसी चीज को उठा के कैबिनेट में डालने को रखना कहते हैं, इस पर्टिकुलर अप्लायंस को फ्रिज कहते हैं। तो घर की जितनी चीजें हैं उसमें आप अपने बच्चे को जरूर साथ में कराएं, सेंसरी चैनलाइजेशन के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, अटेंशन के लिए, और मोर ओवर सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा एंगेज रहेगा, क्योंकि इन बच्चों को लीजर में एंगेज रहना इट्स अ टास्क, इट्स अ for most of the kids, even typically developing kids are very difficult to keep them engaged, but for these kids it's a real task. So इस आपका बहुत सारा पर्पस सर्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा टास्क नहीं करना। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वो काम बनाने की बजाय बिगाड़ दें, बट दैट्स ओके, वो सारे बच्चे करते हैं। यस, सो ये सेक्शन ऑलमोस्ट मेरी तरफ से पूरा है। अगर किन्हीं पेरेंट्स को कोई क्वेरी है नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ लाने में, या आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग के टर्म में, तो वो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी। या नाउ अब जिसके पास अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सोनी जी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा था, रश्मि सोनी जी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, राइट? जी मैम, बच्चा हमारा कुछ भी अभी मैम समझता नहीं है, 9 साल की है बेटी, वो अभी कुछ भी नहीं समझती है, और ऑटिस्टिक इसकी मैम ने बताया ये बच्चा ऑटिस्टिक है, और ये हाइपर बहुत रहती है, ये हर वक्त अपने आप को रोना और पीटना, हर वक्त ये अपने आप को पीटती रहती है, किसी टाइम ये शांत नहीं बैठती है, इसके लिए क्या करें मैम?
हाँ, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इनकी जो डायग्नोसिस हुई है ये कौन सी, इनकी टीचर ने बताया है या आपकी थेरेपिस्ट ने बताया है, किसने बोला कि ऑटिस्टिक है? मैम ने बताया है, टीचर रिसोर्स सेंटर की मैम ने बताया कि ये ऑटिस्टिक है। ओके ओके मैम, तो अभी तो जैसे ये बैठती नहीं है, रोना चिल्लाना बिहेवियर इशू है, तो आई होप कि उन्होंने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी लें। जी रश्मि जी, हाँ आप जी, मेरी कौन सी थेरेपी? जी जी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप जी, करा? सुन रहे हैं। नहीं मैम, फिजियोथेरेपी करवाई थी इसकी, फिर वो बंद हो गई जब से ये चलने लगी। अभी 2 साल हुए हैं तब से ये चलने लगी है, लेकिन अभी ये बोल नहीं पाती है अभी। मैम तो चलने और इसको कोई भी जी, ये जो चलने लगी है तो इनकी परेशानी, इनकी डायग्नोसिस क्या थी? सिर्फ फिर ऑटिज्म नहीं हो सकता, इनको मतलब चलने में परेशानी कुछ और, जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी, लो मसल टोन, ऐसी कुछ परेशानी होगी जिनकी वजह से इनके मोटर माइलस्टोन अचीव नहीं होंगे। आप जी अगर जी मुझे डायग्नोसिस सही से बताएंगे फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगी। बट मैम जो भी जी डायग्नोसिस अगर ये नहीं बोलती हैं तो आइडेंटिफिकेशन और जी लिंकिंग तो मैम कम से कम आप घर पे करा ही सकती हैं। जैसे फ्रूट्स की जो कॉमन यूज के आइटम है, घर के आइटम्स जैसे बॉटल, ग्लास, कप, पेंसिल, चेयर, बेड, सोफा, जी टीवी, जो नॉर्मल चीजें उनकी जी जो मैंने आपको बताई वो करा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की मान लो आप, अगर वो कुछ नहीं करती है, बिल्कुल ही कुछ नहीं करती है, जैसे जी आपने जी बॉटल रख दिया, ग्लास रख जी, दिया, कप रख खेलती है बस, लेकिन चीजों को तोड़ना है, पटकना है। और जैसे बेड पे बैठेगी तो बेडशीट नहीं रखती है, पिलो कवर नहीं रखती है, ये सब करती। समझती कुछ नहीं कि माँ ही ये मत करो, तो वो मानती नहीं, करेगी अपने ही मन मैम का। अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे है, तो समझने की तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ, जो ये मैंने बताया कि जी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बहुत सारे कराओ उनको। तो शुरू में हाँ परेशानी होगी, जी नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, हाथ पकड़ के उनको कराओ, बट जब इंस्ट्रक्शन देते हो जी उसको बोलो। जी रश्मि जी, हेलो। वन ठीक है। ओके, तो जस्ट मिनट। रश्मि जी, आप जी जी आप ना मेरे से बाद में कनेक्ट करना, क्योंकि अभी ठीक जो है आपका सर। केस है ना, अभी हम लोग वो चीजें जी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बाद में जी बात करते हैं उसके ऊपर, एंड देन आई विल शेयर विद यू समथिंग, देन हम उसको देखते हैं, ठीक है? हेलो। हेलो। ठीक है या सर। हेलो। हेलो। या हाँ हेलो। जी, हाँ बताइए हाँ जी। बताइए। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जी एक्चुअली मेरा बेटा 7 इयर्स का है, और वो मैम नॉर्मल जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो कर लेता है, लाइक फ्रिज में रख दो, किचन में रख दो। लेकिन मैम उसके अलावा उनको कॉम्प्लिकेटेड करके कैसे कराना है, और किसी पर्टिकुलर टास्क का सीक्वेंस क्या रहेगा? ओके, जैसे मैम आप कह रहे हो कि ये सिंपल इंस्ट्रक्शन, हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं वन स्टेप इंस्ट्रक्शन, जिसमें एक वर्ड इन्वॉल्व है कि आपने उसके हाथ में बॉटल दिया, आपने बोला बेटा फ्रिज में रख दो, तो वो रख के आ जाएंगे, इतना करते जी हैं मैम। वो। तो हाँ आप जी। हाँ जी। हाँ, तो इससे आगे की चीजें है, तो पहले आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाओगे कि उसके हाथ पे मान लो आपने 2 बॉटल दे दी, कि एक फ्रिज में रखा, फ्रिज के बगल में मान लो आपने एक चेयर रख दिया या टेबल रख दिया, एक फ्रिज में रखो, एक चेयर पर रख दो, ठीक है। अगर ये पार कर जाए तो फिर आप कर सकते हो, आप 2 डिफरेंट कलर की बॉटल दे सकते हो, ग्रीन बॉटल फ्रिज में रखो, पिंक बॉटल चेयर पे रखो। जब ये लेवल पार हो जाए तो आप 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ 2 अलग अलग वर्ब के इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ये बॉटल फ्रिज में रखो, इस बॉटल में पानी भर दो, ठीक है। ऐसे करके ग्रेजुअली आप 2 verbs together, 3 verbs together, 2 places together, two different places at same time, ऐसे करके आप इंस्ट्रक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके मैम, अगर वो 7 to 8 सीक्वेंस 2 स्टेप्स के कर लेता है तो मतलब मैम वो उसमें फिर मास्टर है, फिर उसे इंक्रीज करते जाएंगे। यस यस यस, ठीक है। आइडियली मैम हम 5 to 6 स्टेप तक के टारगेट रखते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। कोई और भी है क्वेश्चन के लिए? एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चैट में डाला है एकता ने, एकता चौहान। या एकता आप हो? हेलो। या हु इज दिस? हेलो, अमृता चंद्रा, रत्नम चंद्रा। ओके, या सर मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 7 इयर्स का है, वो वर्ड्स तो हैं उसके पास और काफी कुछ डायरेक्शन फॉलोइंग भी है,
प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उससे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसका वो आंसर नहीं देना चाहता, इधर उधर देखता है, अभी आई कांटेक्ट भी इतना डेवलप नहीं है उसका। मैम वो सेक्शन आ रहा है हमारा, फर्दर आ रहा है। आई आंसर योर क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको ना समझ आए हमारे प्रेजेंटेशन से उसके बाद। वो सेक्शन अभी आ ही रहा है। और ओके मैम। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये एकता का है कि शी इज सेइंग लाइक आई वांट टू नो अबाउट माय सन, ही इज 4.5 and he do traveling. Ekta. Okay, yeah, Ekta, go ahead. हेलो मैम। मैम मेरा ये है, मेरा बेटा माइल्ड ऑटिज्म उसका डायग्नोस हुआ था 2 साल पहले, तब से उसकी थेरेपी चल रही है, ओटी स्पेशल एजुकेशन। तो अभी ही 4.5, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, सेंसरी भी ऑलमोस्ट सेटल है, और हमें कोई ज्यादा चीजों में इशू नहीं आ रहे हैं, बस उसकी स्पीच नहीं आ रही है। बैबलिंग बहुत है, और ऐसा नहीं है कि वर्ड्स नहीं है उसके पास, बट ये है कि वो बोलता नहीं है। मतलब अभी के जो हमने उसमें स्पेशल एजुकेशन के सर थे, उन्होंने बोला हमें कि आपको ना इसके साथ ना फोर्सफुली बुलवाना पड़ेगा, अगर आप इसके ऊपर छोड़ दोगे कि ये बोलेगा तो ये खुद से नहीं बोलेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा जैसे स्टबन है कि मुझे नहीं बोलना। जी ओके मैम, पहला मेरा जो क्वेरी है, उनकी जो ओरल जहाँ पे आप थेरेपी कराते हो तो उन्होंने ओरल मोटर एग्जामिनेशन किया होगा, तो उनके सारे ओरल मोटर जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनल है हाँ, जैसे उन्होंने ब्लोइंग कराई थी, सकिंग कराई थी, और जितने भी होते हैं ये एक्सरसाइज ओरल वाली, तो वो सभी अच्छे से, उसमें कोई इशू नहीं। जी ओके फाइन, ठीक है। जो आपके स्पेशल एजुकेटर ने बोला है ना मैम कि थोड़ा फोर्सफुल कराना पड़ेगा, to 50 to 60% I agree with the advice. रीजन कि ये जो होता है ना, इनको लगता है कि आपने बोला और इसने काम कर लिया, तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, तुमने बोला मैंने काम कर दिया, कम्युनिकेशन इज डन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या होता है, कोई चीज गिरी तो हम इनके केस में क्या होता है कि उठा के रख दें, गिर गई तो इसका आउटकम क्या होना चाहिए, उठा के रख दो। हमारे केस में क्या होता है कि हम बोलते हाँ गिर गया, अगर अभी ये टूट जाता, तो उनके लिए बोलना इतना जरूरी नहीं होता है। और स्पेशली आपके बच्चे में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि वो कमांड फॉलोइंग बढ़ रही है, तो उसकी समहाउ जो माइंड सेट है वो ये बन गई है कि लोगों ने जो बोला है वो मुझे कर देना है, दैट्स इट। बोलना इतना जरूरी नहीं है। तो आप ना उसको जैसे उसकी बहुत ही बेसिक और नीड्स, मतलब बेसिक मैंस जो है ना, वो बिना बोले उसको बिल्कुल मत दो। स्पेशली जो भी उसके जो फेवरेट रीइंफोर्सर्स हैं, अगर एडिबल्स है तो एडिबल्स, टॉय या फूड या जो भी, मेक श्योर कि उसको बिना बोले एटलीस्ट वो आपके पीछे रिपीट भी करे, दैट इज फाइन फॉर नाउ, बट रिपीट जरूर कराओ। बैबलिंग मतलब मैम वो बच्चों वाली बैबलिंग करता है या आप जो कुछ कहते हो उसको बैबल में टर्न कर देता है? वो मैम जैसे सेल्फ प्ले करता है, जब अकेला खेल रहा होता है तब वो बड़े डिफरेंट साउंड्स निकालता है, ये आ बाबा डाडा ऐसे साउंड्स निकालता है, स्पेशली जो वॉबल्स वाले साउंड्स होते हैं, ओ ई ये वाले सारे। तो फिर आपने सबसे बेसिक साउंड से जो बहुत ही दे दो, ले लो, रखो, जो 2 वर्ड वर्ड्स है ना, 2 सिलेबल वर्ड्स जो हम अपनी बोलने चालने की भाषा में यूज करते हैं, वो उसको पहले यूज करो। और बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड उसके साथ अभी यूज नहीं करना, क्योंकि वो वर्ड पे आया नहीं, अभी वो सिलेबल पे है, ठीक है। अगर उसने किसी वर्ड का पहला सिलेबल भी बोल दिया तो उसको रीइंफोर्स जरूर करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको पानी बोलने बोला, उसने पानी की बजाय पा बोल के या पापा बोल के भी रह दिया, तो रीइंफोर्स एज एन उसको रिवॉर्ड जरूर दो उसके लिए, ताकि उसको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका कुछ मीनिंग हुआ। उससे अभी एक ही बार में आप बड़े वर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। बट हाँ, आपको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सबसे जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रही है कि उसको लगता है काम कर देने से बोलने की जरूरत नहीं होती है। Maybe. Thank you so much. Yeah, and there's a last question, Parita. हाँ? सर मेरा भी क्वेश्चन था। Sorry, कौन बोल रहे हैं? सर फातिमा। Okay, yeah. Sir, my question to ma'am is that my son has just turned 4 and he has been diagnosed with ASD. और लास्ट 1 ईयर से मैं उसकी थेरेपीज करा रही हूँ, उससे काफी बेनिफिट आया है। और बच्चा जो है वो पहले तो बिल्कुल नॉन वर्बल था और अब वो 1 वर्ड्स बोलने लगा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स अभी नहीं बोल पाता, जैसे कि हैट, रैट, ये सब में थोड़ा उसको उतनी क्लैरिटी नहीं है।
और दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में भी उसको थोड़ा इशू होता है. लाइक इफ आई से कि मम्मी दे दो बोलो, देन ही विल नॉट से, ही विल ओनली से ईदर मम्मी या दे दो. तो उसको मैं दो वर्ड्स एक साथ कैसे बुलवाऊं, उसमें मैं कैसे लेके आऊं? मैम आपका क्वेश्चन अगले सेक्शन में ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा. आई हैव द क्वेश्चन फॉर दैट, हाउ टू इंक्रीज द सेंटेंस. यस, चलिए. तो अभी आज ही होगा या नेक्स्ट वीक? सॉरी मैम आज करिएगा या नेक्स्ट वीक? आप नहीं, अभी थर्ड सेक्शन में अभी. ओके ओके. या मैम वी कैन कंटिन्यू. ओके. सो एक ये तो हो गया बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, हाउ टू मेक योर चाइल्ड वर्बल व्हेन चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द स्पीच, हैज एन does not have identification and labeling. Hello. Next, yeah, can we all mute now? We have moved to the next section. I want you all to mute, please. हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था. हेलो मैम, we'll take the question in coming segment. Yes. आप ना अपना क्वेश्चन चैट में डाल दो. हाँ, चैट में डाल दो. नहीं सर, मैंने अपना क्वेश्चन पहले सेशन के लिए दे दिया था लेकिन आया नहीं इसमें, तो मैं सोच रही हूँ बता दूं मैम को अपना क्वेश्चन. नहीं, क्वेश्चन अभी सारी चीजें इसी सेशन में कवर की जाएंगी. वो बस अभी एक टॉपिक है जिसपे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन एड्रेस किए जाएंगे. अभी है ना, आप इस चैट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चन अपना, ठीक है? ये साइड में आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप उसमें अपना क्वेश्चन डाल दो, ठीक है? उन्हें हम एड्रेस करेंगे. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. जितने भी क्वेश्चन है सारे एड्रेस किए जाएंगे, डोंट वरी. Now we're moving to the next section. How to increase the length of sentence. Just now we had a question from I forgot the name, Fatima, if I'm not wrong, कि बच्चा एक वर्ड तो बोलता है, ज्वाइन नहीं करता है. ठीक है, तो ये जो होता है ना, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, इवन जब आप एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चे देखोगे तो क्या होता है, शुरू में वो पहले एक वर्ड बोलते हैं, उसी वर्ड को दो बार रिपीट करके बोलते हैं, देन ग्रेजुअली एक वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड आता है. तो बहुत सारे लर्निंग पैटर्न ये होता है कि या तो नाउन पहले आएगा या वर्ड पहले आएगा. नाउन एज एन, जैसे बच्चे को अगर बॉल चाहिए तो वो बॉल बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगा बॉल. अगर उसको एप्पल खाना है तो वो एप्पल बोलेगा तो आपको समझ आएगा. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वर्ड पहले. प्लीज म्यूट इट, बीइंग लिटिल डिस्टर्बिंग. ओके, कुछ बच्चे में होता है कि वर्ब पहले आ जाता है, कि हर चीज के लिए दे दो. अगर उनको बाहर जाना है तो आप एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ पकड़ के बोलेंगे चलो. अगर उनको कुछ चाहिए तो कबर्ड के पास जाके बोलेंगे ओपन. तो वो वर्ब या नाउन उनका पहला वर्ड होता है, जो उनके हर बच्चे का अपना अपना कन्वीनियंस होता है, अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है. तो कुछ बच्चे नाउन पहले पिक करते हैं, कुछ बच्चे वर्ब पहले पिक करते हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेंटेंस, इंक्रीज द सेंटेंस लेंथ, हाउ टू जॉइन टू वर्ड एंड फर्दर एंड मेक अ सेंटेंस. ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा है, उसने नाउन पिक किया है कि अगर उसको कुछ चाहिए, मान लो उसको टीवी देखना है, तो उसने बोला टीवी, तो आपको समझ आ जाएगा कि टीवी देखना है. उसको बॉल से खेलना है तो उसने बोला बॉल, तो वो नाउन यूज कर रहा है, राइट? तो अभी हमें उसको सिखाना है कि तुम पूरा सेंटेंस कैसे बोलो. तो हम स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे. जैसे एक पूरा सेंटेंस होगा, मुझे टीवी देखना है, लेकिन बच्चा अभी टीवी यूज कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे टीवी ऑन करो, टीवी देखना है. तो टीवी बच्चा ऑलरेडी बोल रहा है, तो हम जो सेकंड वर्ड है, मतलब हम वर्ब को टारगेट कर रहे हैं, तो हम उसको उसने टीवी बोला, उसके बाद आप तुरंत बोलो देखना है. तो बच्चा फिर देखना है बोलेगा, क्योंकि उसको वन वर्ड बोलने की आदत है. वो प्रीडोमिनेंट नाउन है तो स्पॉन्टेनियस उसका नाउन आएगा. सेकंड आप वर्ब के लिए उसको हेल्प करोगे. बोल दिया, फिर भी अभी ज्वाइन नहीं हुआ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 5, 6, 7, 8 वाली बच्चे को टीवी के बाद देखना करा दोगे, तो उसको ये समझ आए कि जब मैं टीवी बोलूंगा तो मम्मा कुछ ना कुछ बोलेगी. और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ब्रेन लर्न कर जाता है, वर्ड को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एसोसिएट कर लेता है. तो थोड़े दिनों के बाद फिर आप, जैसे टीवी उसने बोला तो आप बोलो प्रॉम्प्ट दे दो. किसी वर्ड का फर्स्ट, जो भी वर्ड आप पर्टिकुलर टारगेट है उसका फर्स्ट साउंड प्रॉम्प्ट दे दो. तो हो सकता है बच्चा वर्ड कंप्लीट कर ले. बहुत सारे केस में होता है कि बच्चा नहीं कंप्लीट करता है वर्ड, फिर आप एक वर्ड के 2 सिलेबल प्रॉम्प्ट करो, देख, तो शायद वो बोलेगा ना है. और ऐसे कर करके अगर प्रॉम्प्ट हमने ज्यादा किए तो ग्रेजुअली हम, जैसे आपने देख पे बच्चे ने, जैसे बच्चे ने टीवी बोला, हमने बोला देख, तो बच्चे ने बोला ना है. जब ये स्टेबल हो जाए, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में स्टेबल हो जाए, तो फिर आप उसको बोलो कि टीवी दे. आप फिर अपने प्रॉम्प्ट घटा लो, ख नहीं बोलेंगे, सिर्फ दे बोलेंगे, तो बच्चा बोलेगा. आप दे बोलोगे तो खुद बोलेगा देखना है.
और ग्रेजुअली कर करके उसको प्रॉम्प्ट फेड अवे करते जाना है। हो गया। जब 2 वर्ड हो गए तो उसके बाद सेंटेंस की लेंथ बढ़ानी है। तो उसको मीनवाइल आप अगर प्रोनाउन आता है बच्चों को तो ठीक नहीं आता है तो फिर उसको सिखाओ कि मुझे टीवी देखना है। जब ऐसे प्रॉम्प्ट सेम स्ट्रक्चर जाएगा कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, अगर फर्स्ट ऑन प्रॉम्प्ट पे नहीं कर रहा है तो आधा वर्ड बोलेंगे, जब आधा वर्ड बच्चा कंप्लीट करे तो प्रॉम्प्ट फिर हम कम करेंगे, फिर प्रॉम्प्ट हम ग्रेजुअली फेड करेंगे। जब ये सेंटेंस हो जाए फिर उसके सेंटेंस की लेंथ बढ़ाओ। मम्मा टीवी ऑन कर दो, मम्मा सोफे पे बैठ के टीवी देखना है, मुझे टीवी। और जो पर्टिकुलर चीजें, मान लो कोई सॉन्ग का, किसी को सॉन्ग का फैसिनेशन होता है, किसी को न्यूज का होता है, किसी को कार्टून का होता है, किसी को एड का होता है। ऑल किड्स आर डिफरेंट, लाइक यू मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट। तो ग्रेजुअली उसकी लेंथ, टीवी देखना है, उसके बाद टीवी में कार्टून देखना है, टीवी में जी न्यूज देखना है, टीवी में सॉन्ग्स देखना है, टीवी में मूवी देखना है। तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर, जब ये स्टेबल हो जाए तो और स्पेसिफिक हो जाओ। मुझे डोरेमोन कार्टून देखना है, मुझे चिट्टियां कलाइयां सॉन्ग देखना है, मुझे जो एड बच्चे देखते हैं, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर, सो जो भी एड देखते हैं तो वो एड देखना है। तो जैसे ऐसे कर करके उसको पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन जाएगी, मतलब नाउन और वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मुझे टीवी देखना है। फिर उसमें प्रीपोजिशंस या एडजेक्टिव, कुछ बच्चे प्रीपोजिशंस पहले पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने रैबिट को बिठाया इस पे, तो कुछ बच्चे प्रीपोजिशन पहले पकड़ते हैं कि रैबिट चेयर के ऊपर बैठा है, के ऊपर इज द प्रीपोजिशन। कुछ बच्चे एडजेक्टिव पहले पकड़ते हैं कि रैबिट पिंक चेयर पर बैठा है, रैबिट पिंक चेयर के ऊपर बैठा है। ठीक है। सो जो भी, कुछ बच्चे प्रीपोजिशन पकड़ते हैं, कुछ बच्चे एडजेक्टिव पकड़ते हैं। तो जो पकड़ते हैं उनसे करा के, जब ये एडजेक्टिव हो जाए देन वी गो फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव। ये मैं हिंदी स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, और इंग्लिश वाले उसके हिसाब से कर लेंगे, और दूसरे लैंग्वेज वाले का मोस्टली हिंदी के हिसाब से ही जाता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जी। तो जब ये हमारा हो जाए तब आप उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब लगाना, टेंसेस यूज करना, जैसे यूजुअली बच्चे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, फिर उनको पास्ट टेंस में, फिर उनको फ्यूचर टेंस में, तो वर्ब के फॉर्म करेक्ट कराओ, एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन, राइट। एंड एक और चीज है जो भी इनमें क्या होता है ना, कि एक बार सेंटेंस आने के बाद एक टाइम आता है, जो मैंने अपने बच्चों में देखा है, माय ऑब्जर्वेशन, रिग्रेशन हैपेंस। क्योंकि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो मोर देन 70% ऑफ द किड हैव गुड इंटेंट टू टॉक। तो उनको एक फैसिनेशन मिलता है, एक किक मिलता है कि मुझे बोलना है, बट थोड़े दिनों के बाद वो रिग्रेशन भी हो जाता है, 5 वर्ड पे जाके फिर वापस से 2-3 वर्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर उनको नई चीज नहीं मिलती है। तो मेक श्योर कि स्पीकिंग इन अ सेंटेंस इट्स अ बिहेवियर। व्हेन यू नो कि आपके बच्चे को सब कुछ पता है, फिर भी अगर वापस पीछे आ गया है तो वो एक बिहेवियर हो जाती है। तो वहां पे बहुत जरूरी है ध्यान रखना है कि अगर मेरा बच्चा सेंटेंस में 6 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, 8 वर्ड यूज करने का केपेबल है, तो हम उसकी 2 वर्ड 3 वर्ड एक्सेप्ट ना करें। नोइंगली वी मेक अ मिस्टेक, जहाँ पे हमें ये लग जाता है कि अच्छा ठीक है उसको तो बोलने आता है, और ये रिग्रेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये रिग्रेशन नहीं किया जाए तो इट बिकम्स अ हैबिट, अगेन चाइल्ड कम्स बैक टू 2 और 3 लेवल। तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं कि ओके मैम हमने सिखाया, फिर से वापस कर। तो ये नेचुरली हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि वापस बच्चे जब पे आए तो हम उनको वो करते हैं, मतलब उनको रीइंफोर्स करें कि नहीं, हम तुम्हारी ये 2 वर्ड 3 वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको हम कंप्लीट वर्ड पे ले जाएं। ठीक है। यस। नेक्स्ट को इस सेक्शन में अब किन का क्वेश्चन है प्लीज बताइए, सेंटेंस लेंथ इंक्रीज करने के लिए, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन है, जैसे फरीदा ने क्वेश्चन पूछा है कि यस ओके या गो अहेड। हेलो जी। हाँ, हाय मैम, मैं फरीदा। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा अलग है। मैं माय डॉटर शी 7 years नॉन वर्बल है। वो साउंड्स अब शुरू किया है उसने। मैं क्यूड आर्टिकुलेशन यूज करती हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग
बिल्कुल भी नहीं है। अगर बॉल बोलती हूँ तो उसे पहले सिर्फ लास्ट लेटर याद रहता है, ल से फिनिश करती है। तो ब्लेंडिंग अलग अलग करती है, तो ब्लेंडिंग से करवाऊं मैम। और अप्रैक्सिया के लिए सस्पेक्टेड अप्रैक्सिया है, उसे Mostly, ma'am, डायग्नोसिस। mostly. Yes, if blending is not happening, 80% of the cases are apraxia. Haven't seen your daughter though, but अगर blending नहीं होती तो 80% suspect go to apraxia. मैम apraxia के लिए DD के वगैरह I wouldn't able to do it. Sorry, but wouldn't able to do it in this session. We'll take it up the apraxia in the coming session, maybe in the next session or so. क्योंकि यहाँ पे मैम जो हम कर रहे हैं ना, it's not relevant to this one. क्योंकि mostly उनको apraxia है. अगर blending में problem है तो or maybe I can separately answer you sometime. I can record the answer and send you to Mr. Pramod. That's fine? Okay, ma'am. Yeah, thank you very much. Certainly send. All right. Anyone else? हेलो Yeah. मैम। ओके वन बाय वन हम लोग चलते हैं। जैसे अभी फरीदा के बाद में गुरप्रीत ने एक क्वेश्चन पूछा है। गुरप्रीत जी, मैं पढ़ गुरप्रीत रही हूँ, उनका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे डॉटर को वर्ड की क्लैरिफाई नहीं है काफी चीजों में। आई वांट टू आस्क, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? बुल बुक के ही थियो करना पड़ेगा। ओके, सो हेलो। हाँ जी, गुरप्रीत जी आप हैं ऑनलाइन? जी हाँ जी मैम। हाँ मैम बताइए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ मेरी डॉटर ना 4 years 10 months की है, काफी सारे वर्ड्स ना वो क्लियर नहीं बोल पाती है। तो मतलब जैसे मैंने 2-3 थेरेपिस्ट से कंसल्ट करा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको वो वर्ड एम्फसाइज करके बुलवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी वर्ड होता है, मतलब मैंगो ले लो, मतलब बेसिक वर्ड्स भी काफी सारे क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल मतलब यूज करना है कि ब्लोइंग करानी है ज्यादा या सकिंग करानी, कुछ ऐसा कराना है जिससे वो क्लियर होगा, या मतलब मेरे को वर्ड्स पे एम्फसाइज करना होगा? मैम ये एक्सक्लूसिवली स्पीच का है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्शन है। बट हाँ, जितने भी आप मोटर एक्सरसाइज, ब्लोइंग, च्यूइंग या व्हिस्टलिंग करोगे, उससे आर्टिकुलेटर स्ट्रांग होंगे। और इनको जो जरूरत, बच्चे को जो जरूरत है वो आर्टिकुलेशन थेरेपी की जरूरत है। आर्टिकुलेशन थेरेपी मतलब वर्ड को कैसे हम क्लियरली बोल पाते हैं, उनकी जरूरत है। ये मैम लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग है, हम किसी कमिंग सेशन में उसको कवर अप करेंगे। आई एम सॉरी, अभी थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेटेड हो जाएगा क्योंकि एक और सेक्शन हमें करना है लैंग्वेज का। हेलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट इज कल्पिता। शी इज आस्क्ड वन क्वेश्चन। यस कल्पिता आप हैं? हेलो। आई सॉ कल्पिता जी बोल रही हो? हेलो या कल्पिता हियर मैम। मैम मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा है, ये भी मैम कमिंग सेशन में हो पाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आई विल बी डूइंग इन प्रोबेबली द नेक्स्ट सेशन। इट्स अ मेजर टॉपिक, विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। यस, ओके, थैंक यू। एनीवन Okay. एल्स? हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। अच्छा हाँ जी मैम। हेलो कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताइए जरा। मैम, मैं ज्योति बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरा बेटा 7 years का है। वो बोलता है मैम सेंटेंस में, लेकिन जब वो बोलता है तो मैम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाता है। मतलब स्पीच ठीक है, लेकिन हमें समझ आता है, कई बार लगता है जैसे एकदम मुझे खाना दे दो, एकदम बोल जाएगा मुझे खाना दे दो, इस तरह से मैम। तो एक मैम ये प्रॉब्लम है। एक मैम जब मैं उसे तेज बोलने को कहती हूँ तो या तो वो बहुत तेज बोलता है या बहुत धीरे। तो वो एक पर्टिकुलर टोन कैसे सेट होगा कि हमें इस टोन पर बोलना चाहिए? मैम अगेन ये टोन मॉनिटर करने के इसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं। अभी के लिए आप फोन यूज कर सकते हो। जैसे फोन में मान लो आपने एक बहुत ही लो टोन पे कुछ सेम चीजें रिकॉर्ड की, फिर उससे थोड़ी हाई टोन पे रिकॉर्ड की, फिर एक मतलब ऑप्टिमल टोन पे रिकॉर्ड की जो नॉर्मल बातचीत का टोन होता है, एक बहुत हाई टोन पे रिकॉर्ड किया, मतलब हाई इंटेंसिटी पे रिकॉर्ड किया, और उसको सुनाओ और मॉनिटर कराओ अगर उनकी लैंग्वेज अच्छी है तो। और दूसरा ये होता है कि जब आप बोलो, इवेंचुअली मैम जो बहुत हाई टोन की बात होती है ना, वो इवेंचुअली होती है हाउ अदर पीपल्स आर टॉकिंग इन द सराउंडिंग। तो मोस्टली ये उसी से अडेप्ट करते हैं। या तो आप में से या फैमिली मेंबर्स में से कोई बहुत हाई पिच पे बात करते, हाई टोन पे बात करते होंगे, तो उनको पता नहीं चलता है कि कब मुझे हाई टोन पे बात करना है, कब की मम्मी आराम से बात करती है, फादर स्क्रीन करके बात करते हैं, अदर इमीडिएट फैमिली मेंबर।
नॉर्मल टोन में बात करते हैं तो वो टोन मॉनिटर की थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, बट एज ऑफ नाउ बेसिकली मैं आपको ये एक्टिविटी बता सकती हूँ कि आप फोन पे रिकॉर्ड करके बहुत ही लो, ऑप्टिमल और बहुत हाई पे करा के उसको कि हम इतने में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, फिर मॉनिटर करके बताओ मम्मा पानी दे दो, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मम्मा पानी दे दो, ठीक है। रेट ऑफ स्पीच मैम टैपिंग के थ्रू कराते हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी। अभी एक्सक्लूसिवली हम लैंग्वेज पे चल रहे हैं तो हम इसके बारे में बहुत कम बात करेंगे। ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट इज अनु पारीक। जी बताइए। हेलो मैम। हाय मैम। प्रियंका है। ओके, या प्रियंका। या मैम एक्चुअली मेरा 2.8 इयर्स का बेटा है, वो कुछ वर्ड्स एक्चुअली बोलता है बट उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज भी है कुछ वर्ड्स की, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लाइक वर्ड्स को बोलता नहीं है। मैम जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी फर्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने लाइक उसको पता है, जैसे मैंने ऑरेंज की इसको फ्लैश कार्ड दिखाया, उसको पता है ऑरेंज है तो सॉरी अगर उसको पता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट कम्स द लेबलिंग, उसको ये बताना है कि व्हाट इज दिस, कि ये क्या है। ऑरेंज फॉर एग्जांपल आप खा रहे हो कि मम्मा क्या खा रही है, ऑरेंज खा रही है, तो पता है ऑरेंज खा रही है और आइडेंटिफिकेशन है, बट वो लेबल नहीं करता वर्ड्स को, ऑरेंज है पपाया, पता है उसको, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग है। अब लेबलिंग पे काम करो, लेबलिंग पे रेपिटेशन पे काम करो, उसको इमिटेट कराओ अपने पीछे, उसको डिफरेंट तरीके से जिस भी एक्टिविटी में जहाँ पे भी रियल वर्ल्ड में यूज करते हो सिचुएशन क्रिएट करके उसको कराने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ओके, अनु पारीक। हम लोग ना सीक्वेंस में चलते हैं, नहीं तो जिन लोगों ने पूछा क्वेश्चन वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो अनु पारीक है अभी। हाँ हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हेलो हेलो, मैं कुसुम गुप्ता बोल रही हूँ। मेरे बेटा 15 साल का है, वो बोल नहीं पाते हैं, दादा दादी मम्मी पापा सब अच्छे से बोलते हैं और अदरवाइज और वर्ड जो बोलते हैं वो साफ क्लियर नहीं बोलते हैं, और मूड के ऊपर है, जब मूड होता है तभी बोलते हैं और बोलते भी नहीं है। मैम 7+ और 7 और 9+ वाले बच्चों की मैम एक अलग कैटेगरी होती है ऑल टुगेदर। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं किसी एक सेशन में कवर कर दूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हेलो मैम, मेरा नाम मनस्वी है जी। मेरा बच्चा 4 साल का है और अभी वो थोड़ी बहुत वर्ड्स बोलता है, पहले नॉन वर्बल था, तो अभी जैसे आपने बताया उसको 2 वर्ड्स पे लाने के लिए हम वो अप्रोच यूज करते हैं, जैसे पानी दे दो, टीवी दे दो, आईपैड ले दो, तो इस तरीके से हम उसको 2 वर्ड्स पे यूज करते हैं। बट हमेशा वो क्या करता है, या तो वो मोस्टली 90% आखिरी वर्ड जो रहता है सेंटेंस में उसको पकड़ के रिपीट कर देता है। तो अगर हम सॉरी 1 मिनट सर, आप जो कर रहे हो ना, मैंने क्या बताया, अगर बच्चे को पानी आपने दिखाया कि क्या करना है तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, पानी बोलेगा या बॉटल बोलेगा, तो जो पहले बच्चे को लीड करने दो, क्योंकि एक वर्ड तो उसको आता ही है ना, तो एक वर्ड वो लीड करेगा, सेकंड वर्ड पे आप रेपिटेशन कराओ या प्रॉम्प्ट दो, एक वर्ड बच्चे को स्टार्ट करने दो। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी दिखाया तो उसने बोला पीना, और या फिर बोला पानी या फिर बोला बॉटल, एक वर्ड बच्चे को बोले तो दूसरा जो कंप्लीशन है वो आप उसको प्रॉम्प्ट के साथ कराओ। हाँ, तो मैम जैसे अभी वाटर है तो वो वाटर पे वाटर बोलता है, बट अगर जैसे मैं उसको बोल रहा हूँ वाटर, गिव वाटर, या वाटर बॉटल, या वाटर दे दो, कुछ भी अगर मैं उसे बोल रहा हूँ तो वो नेक्स्ट टाइम पे जब मैं मतलब रिपीट कर रहा हूँ उसको वाटर, उसने बोला, मैंने बोला दे दो या गिव वाटर, तो वो उस केस में सिर्फ मोस्टली लास्ट वर्ड जो मैंने बोला, जैसे मैंने सिर्फ दे दो बोला तो वो दे दो बोल देगा। अगर मैं उसे बोलूंगा ज्वाइन करो, वाटर दे दो, तो ज्वाइन नहीं कर पाता, या आखिरी वर्ड ही बोल पाता। जी, आई गॉट। इंस्ट्रक्शन नहीं समझेगा बच्चा। एज सून एज ही फिनिशेस वाटर, एवरी टाइम यू हैव टू से इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द वाटर आपको तुरंत स्टार्ट करना है दे, और अगर प्रॉम्प्ट नहीं ले रहा है तो पूरा वर्ड रिपीट कराओ। आई टोल्ड यू कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रिपीट करने लग जाओगे प्रॉम्प्ट, तब जाके वो पिक करेगा और फिर जाके वो उसको कंप्लीट करेगा सेंटेंस। सो सिर्फ आप एक बार, और हमेशा ये ध्यान रखो कि बच्चे ने जो लीड किया,
अगर उसने बोला वाटर तो फिर आप उसको वर्ब कंप्लीट कराओ, आप अपनी नीड मत दो बच्चे को, फिर उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसको इंटेंट भी क्लियर नहीं है कि आप क्या कराना चाहते हो। लेट द इंटेंट ऑफ चाइल्ड बी क्लियर, फिर आप उस पे एक्सटेंड करो। ठीक है मैम, तो मतलब अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं करते हुए, तो आई कंटिन्यू दिस और इसमें कुछ चेंज करना है? दिस इज द राइट अप्रोच, राइट? Approach is right. What I tell you, do it immediately after completing the word, whatever he does spontaneously. Okay. Approach is fine. Keep it for a while, change the activities, make it more fun. That's how you do it. Okay, ma'am. Okay. All right. So next is Gaurav Sharma. गौरव शर्मा, हाँ जी मैंने देखा है उनका चैट। Okay. हेलो मैम, आई एम गौरव शर्मा। मैम एक्चुअली मेरी बेटी 2.8 इयर्स की है एंड शी इज जस्ट डायग्नोस्ड। तो मैम एक्चुअली उसको जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कि बोलो पापा बाबा, तो सब कॉपी करती है, इवन फोटो में भी पहचान लेती है वो। लेकिन मतलब उसको जैसे पानी पीना है तो वो बोलेगी नहीं, पानी रोकती रहेगी, मेरा हाथ उठा के पॉइंट करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ एटलीस्ट पानी तो बोलना शुरू करेगी, पानी उसको प्यास लगे तो। सर रेपिटेशन, हाँ सर रेपिटेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो आप बोलते हो उसके पीछे रिपीट कर लेती है वर्ड, एक सिंगल वर्ड फाइन। आइडेंटिफाई, अगर आप पूछोगे कि या फिर आप बोलोगे कि पानी दे दो, अगर 3-4 चीजें रखी हो तो पानी दे देगी आपको? नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी, तो सर उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है ना। फर्स्ट यू वर्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, देन मूव टू द लेबलिंग। और उसको ये पता है कि ये बॉटल है, इसमें पानी है, तो वो मतलब उठा के दे देती है। हाँ, ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया है कि ये उसको बॉटल और पानी अलग अलग ना पता हो, बट उसको ये पता है कि ये दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड वाटर। फॉर एग्जांपल उसको पानी नहीं पता है, अगर ये उस जगह पे रखा है, आपने बोला पानी दे दो, तो वो दे देगी उठा के। लेकिन उसको मैं बोलूंगा पानी पीना है तो भाग के आ जाएगी मेरे पास, सर लेकिन वो खुद नहीं बोल पाती। सर वो कंटेक्चुअल लर्निंग होती है, इट इज समहाउ बहुत सारी चीजें ना कंटेक्चुअल, उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बच्चे को पता होता है, बट आप अगर कंसेप्ट में पूछो कि उसी पानी को दूसरे फॉर्म में पूछो कि अच्छा मम्मा पानी से क्या कर रही है, तो वॉश कर रही है, चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो उनकी शायद कंटेक्चुअल लर्निंग हो गई है। तो पहले आप आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग पे काम कर लो। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि बच्चे सारी चीजें पहचान लेंगे फिर ही आंसर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम जो बेसिक बच्चे यूज करते हैं, शूज, कोम, बॉटल, बॉल, चेयर, बेड, वो जो नॉर्मल बच्चे यूज करते हैं ना घर में 15-20 जो डेली बेसिस पे ब्रश यूज करते हैं, तो वो सब चीजें आइडेंटिफाई करने लग जाए, उनको लेबलिंग कराओ, फिर कीप इंक्रीजिंग द वोकैबुलरी। आइडेंटिफिकेशन कैसे कराना मैम? फिंगर पॉइंट करके? फिंगर पॉइंट करके, हाँ जी सर, फिंगर पॉइंट करके करा सकते हो, शॉर्टिंग करा के करा सकते हो, मैचिंग करा के करा सकते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट इज आयुष्मान। ये क्या है? नहीं ये तो रेलेवेंट क्वेश्चन, सॉरी। हाँ, ये तो कुछ टीचर और स्पेशल एजुकेटर का कुछ कह रहा है। हाँ, इट्स नॉट रेलेवेंट। शीतल सराफ, शीतल आप हैं? सर ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन। हेलो, या हेलो, कैन यू हियर मी? या कौन बोल रहे हैं? मैं शीतल बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरा बेटा 9 इयर्स का है, वो स्पेक्ट्रम में है, एक्सप्रेसिव है वो। बस खाली मुझे पूछना था कि जैसे वो पानी फास्ट पी लेता है गट गट करके, लेकिन मिल्क पीना उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या तो वो बिहेवियर है या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक हेलो। हाँ जी मैम, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द बच्चों की। ट्राई टू चेंज द फ्लेवर ऑफ द मिल्क। आप उसमें पाउडर मिला सकते हो, हॉर्लिक्स मिला सकते हो, और मिल्क शेक बना के पिला सकते हो। मे बी ही डज नॉट लाइक द टेस्ट, द मोस्ट बेसिक थिंग। और अगर जैसे मिल्क में आपने मलाई डाल दी तो छान के उसको, मतलब उसको सील से छान के उसको ट्राई करो। तो कुछ ऐसी चीज है जो उसको बॉदर करती है, which doesn't allow him to take it pleasantly, because उसको पता है मम्मा छोड़ेगी नहीं, तो हम उसको जितनी देर में कर सकते हैं आराम से करेंगे। तो try to change the flavor or make it more palatable for him. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, next is स्नेहलता। स्नेहलता आप हैं? I guess she left or drop off. No, she's there. स्नेहलता,
Okay, not sure. हाँ हेलो। Yeah. हाँ जी, मैं स्नेहलता बोल रही हूँ। हाँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। लेबलिंग के लिए मैम आप ना शॉर्टिंग, मैचिंग, क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन, ये सब ट्राई कर सकते हो। पहले आप पिक्चर से करा सकते हो, पिक्चर टू पिक्चर मैच, फिर पिक्चर की शॉर्टिंग करा सकते हो कि अच्छा इसमें एप्पल, इसमें से एप्पल निकाल के सारे एप्पल रखेंगे। उसकी क्या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कर सकते हो कि चलो एप्पल को वॉश करें, एप्पल को कट करें, एप्पल को थ्रो करें, एप्पल को ईट करें। तो शॉर्टिंग, मैचिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, मतलब सेम ऑब्जेक्ट रख के उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देना, आप ऐसे कर सकते हो। चाइल्ड इज डायग्नोसिस द इनिशियल स्टेज। जो स्टार्टिंग के लिए मैम सबसे बड़ी चीज होती है कि इंस्ट्रक्शन, डेवलप द कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। बच्चा नहीं कर पाता है खुद से, फिजिकल प्रॉम्प्ट दो। जब फिजिकल प्रॉम्प्ट पे करने लगे तो वर्बल प्रॉम्प्ट दो। वर्बल प्रॉम्प्ट पे करने लगे, जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। यस, थैंक यू। थैंक यू। Okay, next is Swati Rawat. Swati Rawat. हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम। मैम मेरी बेटी 5 years 7 months ओल्ड है। एंड मैम वो मतलब 2 वर्ड के सेंटेंस तो बोल लेती है, लाइक पानी दे दो, खाना दे दो, रोटी दे दो, सब कुछ बोल लेती है। बट मैम वो जैसे अगर मैं उससे बोलूंगी कि मम्मा पानी दो बोलो, तो मम्मा पानी दो बोल देती है। बट अगर उसके पापा अगर उसे देंगे तो वो पापा को भी मम्मा ही बोलेगी, मतलब हर किसी को मम्मा बोलती है। मैम ये ना एक जनरल बिहेवियर हो जाता है कि एड्रेसिंग बच्चे की सही नहीं होती है, तो उनके लिए हर कोई सेम ही रहता है। तो पहले तो एक तो ध्यान दे के देखो कि देखो बेटा बोल कौन रहा है, ठीक है। देन अगर वो चीजें हो जाए फिर आप उनको करा सकते हो कि ओके करने लग गई तो तुम खुद से जाओ, किससे पानी लेना है, मम्मा से लेना है, पापा से लेना है। तो पहले उसको क्लैरिफाई करो कि तुम किससे पानी मांग रही हो, दादू हैं, दादी हैं। और जब वो अटेंशन पे करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी एड्रेस करेगी। मैम जैसे अगर मैं उसे फ्लैश कार्ड्स दिखाती हूँ, जैसे वेयर वाले, वर्ड वाले, तो मैं उससे पूछती हूँ कि बॉल लड़का क्या कर रहा है, तो वो बोलती है कि लड़का खेल रहा है, या लड़का पानी पी रहा है, या ब्रश कर रहा है। बट वो जैसे घर पे अगर मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी तो पूरे दिन कुछ नहीं बोलेगी, और अगर मैं पिक्चर दिखा के पूछूंगी तो सब कुछ बोलेगी पिक्चर दिखा दिखा के। तो मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मैं उसे कैसे मतलब कम्युनिकेशन में लेके आऊँ और उसकी लैंग्वेज को कैसे डेवलप करूँ, इंक्रीज करूँ। मैम उसके लिए क्वेश्चन जरूरी हैं, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में। अब एक्सक्लूसिवली अगर सेंटेंस लेंथ को लेकर कोई परेशानी है तो दैट वी कैन डू इट। Okay, thank you, ma'am. All right. So now we don't have any question here in chat. So किसी के पास कोई क्वेश्चन है अपना? तो जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे बेटे का आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं उससे कैसे इम्प्रूव करूं? उसी की वजह से मुझे लगता है कि उसके कम्युनिकेशन में भी गैप, वो कुछ भी पूछो तो उसका वो आंसर नहीं करना चाहता है। जी हाँ, जो आपने बोले क्योंकि विजन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस है कि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे कैसे। मैम जो मैं बहुत ही बेसिक बता सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया, द सेंसेस। occupational therapists are the best people to do it, but अभी टाइम बीइंग के लिए जो बहुत थोड़े हम लोग अपनी टेक्निक में यूज करते हैं, जो भी उससे बात कर रहा है, तो जैसे मान लो वो जो फंकी वाले ग्लास फ्रेम्स आते हैं, हार्ट वाले और कार्टून वाले और लाइट्स वाले, वो यूज कर सकते हो। अपने हेड पे बड़ा सा बिंदी लगा सकते हो, या स्टिकर वाले जो स्माइलीज आते हैं कलरफुल, वो लगा सकते हो। तो अभी सर्टेनली बच्चा आपकी आंख पे नहीं देखेगा, बट आसपास के एरिया पे देखेगा। एंड ये सारे एक्सरसाइज में उसके साथ करीबन 1.5-2 साल से कर रही हूँ। बिंदी वाला, स्टिकर वाला और बीड्स लगाना, ये सब मैं उसके साथ कर रही हूँ, लेकिन वो काम तो वो कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा मेन पर्पस ये है कि वो मेरी आंखों में देखे, वो चीज नहीं आ रही है। If your child is moderate to severely moderate ASD, he is on. This is I personally do not emphasize more on eye contact because it's a real difficulty for them. For example, जैसे हम मान लो हम जितने भी लोग हैं मेट्रो सिटी
बट हमारी जो बेसिक कल्चर है, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूट। ओके, सो बेसिक कल्चर हमारा जो बेसिक कल्चर है कि women should wear sari, should wear the full length of chudi and all the jewelry, but it's very difficult for us the way we have been brought up and staying outside our native places. तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर दोज किड्स एज वेल जो मॉडरेट से ऊपर जिनकी भी डायग्नोसिस है या मॉडरेट तक, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन द आई कांटेक्ट। तो मेरा जो पर्सनल होता है, आई डू नॉट पर्सनली एम्फेसिस मोर एज लॉन्ग एज चाइल्ड इज लर्निंग द स्किल, एग्जीक्यूटिंग द थिंग। इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लो क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, और आप जितनी ज्यादा उन पे स्ट्रेस डालोगे कि देख के बात करो तो उनका बात करने में भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि जितनी बार मम्मा से बात करता हूँ वो देखने को कहती है। फॉर देम इट्स अ रियल टास्क टू लुक एंड टॉक। सो दैट विल बी माय एडवाइस कि अगर स्किल सीख रहा है, अगर एग्जीक्यूशन हो रही है तो ट्राई करते रहो, बट डू नॉट ओवर एम्फेसिस ऑन इट बिकॉज इट स्ट्रेसेस द चाइल्ड। ओके मैम, एक क्वेश्चन और मैम, क्वेश्चन का वो आंसर ही नहीं करना चाह रहा है। मैं उससे ये भी पूछती हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो नाम उसे पता है, मुझे उसको पता है कि उसे आंसर कैसे करना है, लेकिन वो 2, 3, 4 बार में आंसर करेगा मुझे। तो मैम इसे कैसे इम्प्रूव करें? मैम फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका नाम पता है और मैं दिन में आपसे 5 बार पूछूं and ये question just for to make the relevance of particular situation, you will feel annoyed। और for example मान लो आप बहुत अच्छी मलाई कोफ्ता बनाते हो और दिन में 5 बार अगर मैं आपसे मलाई कोफ्ता की रेसिपी पूछूं तो how would you feel? The communication should be more relevant मैम। it's not कि बच्चे को अगर पता है कि ये एप्पल और आप दिन में 5 बार उसको पूछो तो वो रिलक्टेंट होके नहीं देगा आंसर आपको। सो द बेस्ट वे कि आप उसको रेलिवेंट क्वेश्चन करो जो उसको पता है, जिसमें वो काम करे, बट प्रेजेंट में जहाँ पे है। सर्टेनली हमें पास्ट की स्किल डेवलप कराने के लिए पास्ट के बारे में भी बात करनी होती है, बट ये सोशल क्वेश्चन का रेपिटेशन इट्स अ स्ट्रिक्ट नो टू द EST किड, बिकॉज उनको पता है कि मुझे अपना नाम पता है, दिन में 5 बार मम्मा मेरे से नाम ही पूछते, इट्स वेरी अनोइंग। सो फोकस मोर ऑन द कंटेक्स्ट, जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी आप उसको करवाना चाहते हो उस पर, रादर देन हाँ जो आपकी समस्या है कि मैम ये उसको नाम पता है बट स्ट्रेंजर्स को भी नहीं बोलेगा, तो डू द जनरलाइजेशन फॉर इट। बट बच्चा घर में है और आप उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो बच्चे को ऑलरेडी पता है जस्ट फॉर द सेक कि इसको बुलवाना है तो इसको बेसिक क्वेश्चन हम रिवाइज करा रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। फिर रिलक्टेंसी हो जाती है मैम उससे। मैम नेहा दिस साइड। मैम आई हैव a 7-year-old son and मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बेटे का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, इवन स्पीच भी, लैंग्वेज भी है पूरा। if he wants something then he will say that I need this, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन 2 चीजें हैं कि जब मैं उसको कोई चीज पॉइंट आउट करती कि देखो वहां वो हो रहा है तो उस पर वो कोई कमेंट या कोई आंसर बैक नहीं करता है, वो कभी देखता भी है कभी नहीं भी देखता है, और देखो वहां पे क्या हो रहा है तो उसको डिस्क्राइब कभी नहीं करता है उस चीज को, इवन though he has language. He has language according to you. So what is the answer? Is he able to connect with the environment or is he interested? If not, जो आप रियल वर्ल्ड में कराते हो पहले हम उसको टेबल टॉप पे करा के उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते हैं। Then we go there. For example, अगर आप बातें करना चाहते हैं कि for example if you're in a park and want him to see and talk about the trees or around, right? Create the situation at home using the animals or different things at home. Okay. So am I seen in the camera? Just No, ma'am. Okay, because I wanted to explain this activity. I don't know what happened. Probably your video is off or something. I don't know. My camera is on. Just hold on. I need to check that. Yeah, अभी तो हुआ था। मैम फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बारिश, मैं आपको बता रही हूँ, 1 second. Let me check the camera. मैं आपको एक्टिविटी। Okay. Am I seen? No. No ma'am. Okay. I don't know. Okay. ठीक है, तो इसके लिए मैम आप ऐसी एक्टिविटी करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 5-6 एनिमल ले लिए, अगर आपके पास पार्क वाला टॉय नहीं है तो मेक स्लाइड और स्विंग आउट ऑफ दिस थर्मोकोल एंड कार्डबोर्ड। ट्रीज बना लो थर्मोकोल लगा के, रिक्रिएट करो एनवायरनमेंट। पहले उसको वहां पे ऑब्जर्व करना सिखाओ, वहां पे उसके बारे में बातें करना सिखाओ, देन टेक इट टू द रियल वर्ल्ड।
ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि पहले टेबल टॉप पे डिस्क्रिप्शन Yes, डिस्क्राइब yes. करो एंड देन Develop the रियल वर्ल्ड में। understanding of it. Yes. हाँ हाँ, जैसे जैसे मे बी सपोज बारिश हो रही है तो आई एम टेलिंग हिम देखो बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, हाँ, तो मे आप बी कह सकते हो, हाँ, आप कह सकते हो मैम, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन द थिंग, दैट इज नेवर अ पॉइंट कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। माई टारगेट कि इन ऑर्डर टू गेट द आंसर फर्स्ट यू टू एक्सप्लेन हिम व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है। तो ये टारगेट मेरा है कि आप जो पहले पूछते हो तो पहले उसको पता तो होना चाहिए कि इसके लिए मैं शब्द क्या बोलूं। आपने अपनी तरफ से बता दिया कि ये बारिश है, फिर आप थोड़ी देर बाद उसको पूछे बेटे ये क्या हो रही है, doesn't know what to answer, right? पहले उसको ना familiarize करो सिचुएशन के लिए, उसको रेडी करो, then you can ask question and then you can have a communication or conversation. एंड मैम एक क्वेश्चन और था मैम, स्टिमिंग वर्बल स्टिमिंग काफी ज्यादा है, मतलब खाली पीरियड जैसे कहीं पे एंगेज नहीं है तो उसमें वर्बल स्टिमिंग काफी ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या इसमें 50% डाइटरी रहता है। डाइट पे आपको उसको चेक कराना पड़ेगा कि किस डाइट की वजह से ये हो रही है। 50% इन अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, रेस्ट 50% बिकम्स द बिहेवियर कि कुछ नहीं करना है तो हमें स्टिमिंग कर लेनी है। हाँ एग्जैक्टली वही होता है, जैसे कोई एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो वो खाली टाइम में स्टिमिंग वर्बल स्टिमिंग। हाँ, तो उसको मैम क्या है ना कि एक तो है कि हम बिहेवियर के तौर पे कि बेटा फर्स्ट वी टेल देम कि ये नहीं करना है, ठीक है, वो चुप हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं करना, अगर ये नहीं करना तो फिर मैं क्या करूं। सो इन ऑर्डर टू रिप्लेस द नॉट सेंसिबल बिहेवियर यू नीड टू गिव द चाइल्ड सेंसिबल बिहेवियर। यस, ओके, वहां पे उसको अगर आपने बोलने से मना कर दिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, पर्टिकुलर चीज बोलने से मना कर दी तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैम लेकिन जैसे ना क्या होता है आप कभी बिजी हो या कुछ कर रहे हो और बच्चा खाली बैठा है तो वो आप तो इसीलिए मैम कॉन्स्टेंटली आप एंगेज नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो एक्टिविटीज दिन भर में मैम दैट इज एक्स्ट्रा टास्क फॉर अस, बट कीप 10 to 15 एक्टिविटी रेडी फॉर एवरी डे और कीप द वेरिएशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपने एक एक्टिविटी कराई तो उसके वेरिएशंस करो और उसको दे दो। और हाँ, ये भी बात है कि आप 24 घंटे बच्चे को एंगेज नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली हम कर सकते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं करते, तो थोड़ी टाइम तो मैम करेगा, बट एक बार उसको इंटरेस्ट ये समझ आ जाएगा ना कि मैं खाली टाइम में क्या कर सकता हूँ, then he will probably be more on doing the thing rather than doing the verbal statement. Okay, yes? Thank you. Okay. Yeah, sure, thank you. हाय मैम, मेरा क्वेश्चन था। हाय गुरप्रीत दिस साइड। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरी डॉटर को काफी चीजें मैंने सिखाई हैं, तो अभी 3-4 महीने से ना वो मतलब टॉयलेट का भी बताने लगी है, टॉयलेट जाना है, पानी पीने का बोलती है, मगर खाना खाने के लिए नहीं बोलती है। लाइक फूड खाना है, अगर मैं उसको सामने दिखाऊं फूड तो वो बोल देती है कि फूड खाना है, मगर खुद से नहीं बोलती है। और खुद से क्या करती है कि अगर उसको भूख लगी होती है तो अपनी चेयर लेके जाती है किचन में और उससे चढ़ के पूरा स्लैब पे चढ़ के खुद कुछ ना कुछ निकाल के खाने की कोशिश करती है, पर मुझे नहीं बोलती है कि मम्मी फूड खाना है। तो वो कैसे मैं उसको सिखाऊं? ओके, कितने साल की मैम आपकी बेटी है? मैम 4 साल 10 महीने की। 5 साल की बच्ची। ओके मैम, क्या है ना, 2-3 चीजें। एक तो बच्चा जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो उनको लगता है कि मुझे नहीं, मतलब मैं खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि इनके लिए बोलना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव अ रूल इन द हाउस कि खाने के लिए स्पेसिफिकली जितने भी लोग, कोई भी लोग किचन में जाने से पहले बोल के जाएगा, ठीक है। दैट इज अ बेसिक प्रैक्टिस, यू शुड हैव इट। जैसे घर पे अपनी बेटी के साथ, एक मिनट मैम, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रहती हूँ घर पे, तो जैसे मेरे को अगर खाने जाना है तो मैं बोल के जाऊं कि मैं फूड खाने जाना है, ऐसे मतलब। हाँ, सब लोग बोल के, इवन फादर गोज टू, अगर फादर भी जाते हैं खाना खाने तो आपको बोल के ही जाए कि मुझे बिस्किट निकालना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे पराठा खाना है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब इससे काफी, मतलब 3-4 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं फोटोज भी दिखाती हूँ, जर्नलाइज भी कराती हूँ कि जैसे बर्गर खाना है या कुछ भी, सब उसको पता है, पिज्जा बर्गर पास्ता सब पता है, रोटी का भी पता चल गया, सब्जी का भी, मगर बस यही नहीं बोल पाती खाने के लिए कि मुझे खाना दे दो या मुझे खाना खाना है।
नहीं तो चिल्लाती है। अगर मैंने चेयर भी छुपा दी उसकी कि चेयर खुद लेके ना चढ़ पाए और मेरे को बताए, तो फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। मैम एक जनरल तो इससे मैम हो जाएगा ठीक, मतलब हाँ आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि ये सबके लिए बेटा, सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आप खाओगे। सो जनरल प्रैक्टिस में ये लाओ, हद तक हेल्प होती है। सोशल स्टोरीज कराओ, हेल्प होती है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम हम लोग ये भी क्लोज करते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी आर 15 ओके। सो जो भी क्वेश्चन हैं हम लोग मतलब आप लोगों के पास में अगर है एज ए पेरेंट्स तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को मैं मैम के साथ शेयर कर लूंगा एंड अकॉर्डिंगली हम कमिंग सेशंस में भी कवरेगा। एक्चुअली टाइम एक्चुअली हो गया, मैम को किसी और मीटिंग में भी जाना है, तो आप अपना क्वेश्चन मेरे को भेज दो, मैं मैम को दे देता हूँ और अकॉर्डिंगली शी विल रिवर्ट एज एंड व्हेन शी गेट टाइम। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।